تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یعنی کہ اللہ رب العزت نے تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا اور حمد کرنے کا، یعنی وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی حمد بیان کرو فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور تسبیح بیان کرو پچھلے پہر بھی اور ظہر کے وقت بھی۔ یعنی حمد بھی اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں، تسبیح بھی اللہ کی تعریف کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرینٹ کیا ہے؟ حمد کہتے ہیں کمالات اور خوبیوں کی تعریف کو، حمد کہتے ہیں جس میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے، کمالات پائے جاتے ہیں، کمالات اور خوبیوں کی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے، اور تسبیح کہا جاتا ہے کہ نقص سے پاک، جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا خوبصورت آسمان ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت ہے، اس میں کسی قسم کا کجی یا ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نقص سے پاک چیزوں کی تعریف جب کرتے ہیں تو ہم اس وقت تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور جب ہم کمالات اور خوبی کو دیکھتے ہوئے تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حمد بھی چاہتا ہے اور تسبیح بھی چاہتا ہے، حمد و تسبیح اللہ کی صبح و شام کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ الحمدللہ تمل المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو اس طرح سے بھر دیتا ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ تسبیح آپ کے لیے ایسی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تسبیحات سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیح، اس لیے اس میں اللہ رب العزت کے نبی نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آیت نمبر 28، ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود ہی تم میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا تم اس میں جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے یعنی غلام یا لونڈیا ان کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ یعنی اللہ کوشچن کے طور پہ، مثال کے طور پہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، کیا تم اس مال میں شراکت دار بناتے ہو؟ کن کو؟ اپنے غلاموں کو، اپنی لونڈیوں کو ان کا شراکت دار بناتے ہو؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تم اس میں اس کو برابر برابر حصہ دیتے ہو، برابر برابر اپنے ساتھ رکھتے ہو؟ یعنی کیا تم اپنے غلام اور لونڈیوں کو اپنے جیسی حیثیت دیتے ہو؟ یہ دیکھ لیں آپ معاشرے کے اندر غلام اور ماسیوں کو کچھ لوگ تو اتنی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، اگر وہ صوفے پہ بیٹھ جائے نا، ان کے ساتھ بیٹھ جائے، تیری یہ جگہ تھوڑا ہے نیچے بیٹھ، تو یہاں بیٹھنے کے لیے تھوڑا ہے، میں مالک ہوں تو غلام ہے تو نیچے رہ۔ یعنی اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح قریش کے مکہ کے سردار بہت امیر تھے، ان کے غلام اور لونڈیاں تھے، تو وہ اپنے غلام اور لونڈیوں کو اپنے برابر جگہ نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے، یعنی ہمسر لوگوں سے مراد جیسے امیر لوگ ہیں، آپ نے ایک امیر شخص کے ساتھ کاروبار کیا ہے، شراکت داری کی ہے، اب وہ آپ سے برابر برابر حساب لے گا، آپ اس سے ڈریں گے کہ کہیں کوئی غلطی نہیں کرنی تو یہ تو مجھ سے برا حساب لے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک غلام اور لونڈی ہے، کیا اس سے بھی آپ ایسے ڈریں گے؟ کبھی بھی نہیں ڈریں گے۔ وہ ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ تو غلام ہے، اس کا کیا ہے، اس کو تو ہم جیسے مرضی ایک چلائیں گے جی ویسے ہی چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اسی طرح اللہ آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو کہ اللہ کے شریک تم کیوں ٹھہراتے ہو۔ یعنی جہاں بات کیا سمجھانی تھی، جب تم اپنے برابر کسی کو نہیں بٹھا سکتے تو اللہ کے برابر لوگوں کو مقام کیوں دیتے ہو؟ یعنی تم ادنا سے بندے ہو کر، وہ تو رب العالمین ہے، اس کو تم اس کے برابر شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو یہ بہت بڑی مثال ان کو دی تھی، سمجھ آنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ تھی، اور جو نہ سمجھے ان کے لیے کبھی بھی کوئی مثال کیا کوئی معجزے بھی سیدھے راستے پر ان کو لا نہیں سکتے۔ آیت نمبر 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے نبی آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کے لیے سیدھا کر لیں، اپنی فطرت پر آ جائیں۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ یہودی ہے، نصارہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن پہلے جب پیدا ہوا تو اس کی فطرت کس پر ہے؟ اسلام پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب مسلمان، سب لوگوں کو میں نے اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ چاہیں اسے یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں، مشرک بنائیں، کافر بنائیں یا مسلمان بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو نہ بدلو۔ اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے؟
फितरत पर। और फितरत क्या है? इस्लाम। इस्लाम से अपने आप को ना बदलो, बल्कि अल्लाह के लिए अपने आप को सीधा कर लो, अपने आप को यकसू कर लो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम क्या करते हो? मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, तुम लोगों ने तो दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यकसुई नहीं की दीन में, बल्कि क्या कर दिया? टुकड़े टुकड़े कर दिया और कई गिरोह बन गए। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर गिरोह ये समझता है कि जो उसके पास दीन है वही ठीक है और वो उसी के ऊपर मुतमईन है, खुश है। दूसरों के दीन को वो सही नहीं समझता। तो अल्लाह ने यहाँ बहुत बड़ी बात हमें ये भी समझा दी, ताकि हमें पता हो कि हम फिरकों में बंटकर अपने आप को ये खुशफहमी में ना मुबतला कर बैठे कि हम ही जन्नती हैं। यहूदी भी यही कहते थे, नसारा भी यही कहते थे, आज हर फिरका यही कहता है हम जन्नती हैं, बाकी सारे जहन्नमी हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने वाले के लिए तो अल्लाह ने बार बार जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, लेकिन कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा कि ये फिरका जन्नत में जाएगा, कहीं भी नहीं कहा, बल्कि यहाँ कहा कि तुम दीन सीधे पर चलो, फितरत पर चलो। अगर तुम उससे बट गए और फिरकों में बट गए तो अपने अपने फिरकों पर खुश हो जाओगे, जबकि ये यही दीन नहीं है, ना ही इसी पैदाइश पर, इसके ऊपर मैंने तुम्हारी पैदाइश की थी। तुम्हारी पैदाइश किस पर हुई थी? अल्लाह और उसके रसूल के दीन शरीयत इस्लाम पर हुई थी। सूरत लुकमान, हजरत लुकमान का जिक्र है, इसलिए इसका नाम सूरत लुकमान है। आयत नंबर 6 बल्कि 5 नहीं 6, वमिनन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुआ। मैंने भी आपको कहा शायद 22वें इस बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन 22वें में नहीं, इसी में ही है। सूरत लुकमान के अंदर ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम में से बहुत से लोग वो हैं जो दिल फरेब, गाफिल कर देने वाला कलाम खरीदते हैं। यश्तरी, खरीदते हैं। एक कलाम अल्लाह का कुरान है, ठीक है ना। आप देखिए कि बहुत से लोगों के घरों में कुरान तो मौजूद है, लेकिन हम जब उन्हें कहते हैं तर्जमे वाला कुरान है आपके घरों में, जवाब क्या मिलता है? कुछ लोगों के घर में होता है, बाकियों के घरों में नहीं होता। कहते बाजी हमारे घर तर्जमे वाला कुरान नहीं है। चलो बच्चों, अब आपने पढ़ना शुरू किया तो ले लो। यानी हम पढ़ाई के दौरान उनसे मुतालबा करते हैं कि अब आप खरीद लो। खरीदना नहीं चाहते, दीन इस्लाम की किताबों को भी नहीं खरीदना चाहते। इसके मुकाबले में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वो कौन सा कलाम खरीदते हैं जो अल्लाह की याद से उन्हें गाफिल कर देता है। इस कलाम से मुराद ऐसा कलाम है जिसको कहते हैं गाना बजाना, साजो सीखी आलात वगैरह, ये सारी वो चीजें हैं जिसके जरिए हम किस्से, कहानियां, अफसाने, ड्रामे, नावल, सनसनीखेज चीजें हम सुनते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है तुम उसको खरीदते हो। यानी यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाहवल हदीस की तशरीह करते हुए फरमाया कि जितने भी शैतानी आलात हैं, चाहे उसमें हमारा मोबाइल ही क्यों नहीं है, अगर हम उस मोबाइल से शैतानी चीजें चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसे खरीद रहे हैं। तो ये क्या खरीद रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहा है कि गाफिल कर देने वाली। अभी आपको मैंने बताया कि अल्लाह के जिक्र से जब हम गाफिल होते हैं तभी हम इन चीजों की तरफ मुलविस हो जाते हैं। अगर हम अल्लाह के जिक्र में आ जाएं, देखिए आज रमजान है, रमजान में हम अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं, तो हम, बहुत से लोग हैं जिन्हें मोबाइल चलाने का टाइम ही नहीं मिलता। जब अल्लाह के जिक्र से अपने आप को रोकते हैं फिर क्या होता है? फिर टाइम ही टाइम होता है, फिर हम इन चीजों की तरफ ही बड़े होते हैं, इन्हीं को ही चला रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला यही कह रहा है लहवल हदीस से अपने आप को बचाना है, इसको खरीदना नहीं है। ये क्या करता है? तुम्हें दीन से, राह रास्त से गुमराह कर देता है। जितनी भी लाहवल हदीस की चीजें हैं ये सारी राह रास्त से तुम्हें दूर कर देती हैं और फिर इल्म के बगैर अल्लाह की राह से गुमराह कर देती हैं और मजाक उड़ाती हैं। यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है। ना यहाँ काफिर का जिक्र है ना मुसलमान का, बस जिक्र किसका है? जो लाहवल हदीस खरीदते हैं और उसी से अपने दिलों को बहलाते हैं। यानी बहलाना किससे था? अल्लाह की याद से। फिर जब इनसे अपने दिलों को बहलाते हैं तो अल्लाह कह रहे हैं इनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। रुस्वा के अजाब में हजरत इब्राहिम का जिक्र मिलता है, जब वो अपने रब से कहेंगे क़यामत के दिन, जब उनके बाप उनके सामने होंगे तो अपने रब से कहेंगे अल्लाह तूने कहा था मैं तुझे रुस्वा नहीं करूंगा, आज सबसे बड़ी रुस्वाई यही है कि मेरा बाप जहन्नुम में जाएगा, लोगों के लिए मैं रुस्वा कुन बन जाऊंगा कि ये है हजरत इब्राहिम का बाप जो कि जहन्नुम में जा रहा है। अल्लाह ताला उसी वक्त कहेंगे तो जरा अपने पाँव की तरफ देख, उनके बाप को बज्जू की शक्ल में बना दिया जाएगा। यानी ये रुस्वाई है उनके लिए थी ना। तो यहाँ हमारे लिए किस तरह का रुस्वा कुन अजाब होगा हम सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए और इन आलात को खरीदने की बजाय इनको खत्म करें, और अगर खरीदे भी सही तो इनसे फायदे वाली चीजें इस्तेमाल करें। आयत नंबर 12 से लेकर आगे मुकम्मल जा रहे हैं, कहाँ तक? रुकू मुकम्मल। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को वसीयतें की थी।
कौन कौन सी वसीयत की थी? शिर्क नहीं करना, और फिर उसके बाद कहा था कि अगर तुम्हें वालिदैन भी शिर्क की तरफ लगाएं तो तुम दोनों में से किसी एक की बात उस वक्त भी ना मानना, क्योंकि तुमने शिर्क से हर हाल में अपने आप को बचाना है। लेकिन अगर तुम्हें वालिदैन कहे तो फला तुतीहुमा, तुमने उनकी इताअत नहीं करनी, बल्कि क्या करना है? वस्वाहिबुमा फिर दुनिया मारूफा, दुनिया की जिंदगी में उनके साथ बेहतर तरीके से रहना, लेकिन आखिरत के मुकाबले में यानी शिर्क के मुकाबले में उनकी बात ना मानना। इसी तरह आगे फरमाया कि तुमने राय के दाने के बराबर भी शिर्क के साथ अपने आप को मुलविस नहीं करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे भी निकाल कर ले आएगा। नमाज को कायम करना और नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, तकलीफ तुझे पहुंचे तो उस पर सब्र करना, क्योंकि सब्र हिम्मत वाले कामों में से है, और तकब्बुर और गरूर न करना, अपने रुखसार को लोगों के लिए तकब्बुर और गरूर से फेर न देना, जमीन पर अकड़ कर न चलना, ये सारी चीजें अल्लाह पसंद नहीं करता। और जब भी चलना तो दरमियानी चाल चलना, न इतना तेज चलना न इतना हल्का चलना, और इसी तरह अपनी आवाज को भी धीमा रखना, क्योंकि ये आवाज जो है सबसे बुरी आवाज गधे की है, ऊंची आवाज से गधा चीखता है, तो तुमने अपनी आवाज को, अपने लहजे को धीमा रखना है। तो ना सिर्फ ये हजरत लुकमान की अपने बेटे को नसीहतें थी, अगर होती तो अल्लाह ताला कुरान में नाजिल ना करता। अल्लाह ने कुरान में नाजिल क्यों की? कि अल्लाह को ये चीजें पसंद थी, अल्लाह चाहता था कि ये औसाफ मोमिनों में पाए जाएं, तो इन औसाफ को इंशाल्लाह हम अपने अंदर ऐड करेंगे। जो ऐड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं है उनको कोशिश करेंगे कि अपने अंदर इन चीजों को ऐड करें। आयत नंबर 34 लास्ट, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साआ, बेशक अल्लाह क़यामत का इल्म जानता है। यहाँ गैब की कुंजियों के बारे में जिक्र है। गैब की कितनी कुंजियां? 5। नंबर 1 कि कयामत कब आएगी, इसका इल्म किसको है? अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। ये पहली कुंजी है गैब की कि कयामत कब आएगी, अल्लाह के पास इसका इल्म है। वयुनज़्ज़िलुल गैज़, और वही बारिश नाजिल करता है। यानी बारिश का मामला भी ऐसा है, अंदाजा तो आप लगा लेते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त अंदाजा आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, ये अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। और वयअलमु मा फिल अरहाम, वही जानता है जो माओं के पेटों में है, बेटा है या बेटी है, मुकम्मल है या नहीं है, तो ये अल्लाह ही जानता है। मशीनें जितना बता दें, लेकिन मशीनें भी कभी कभी गलत ही बता रही होती हैं। कहते क्या है, बेटा है, बेटी पैदा हो जाती है, बेटी बताते हैं बेटा हो जाता है, और बात बात तो पहले ही माओ को अल्टीमेटम दे देते हैं कि आपका बच्चा इब्नॉर्मल है, और अगर माँ नॉर्मल समझते हुए अबॉर्शन करवा लेती है, तो बाद में 1-2 लोगों के बारे में ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमें जैसा देगा इंशाल्लाह। उन्होंने रब से दुआएं की, और जब बच्चा पैदा हुआ तो बिल्कुल तंदुरुस्त था। यानी मशीनें आपको बिल्कुल परफेक्ट बात नहीं बता सकती। परफेक्ट बात किसकी है? अल्लाह की। ये गैब का इल्म है जिसे कोई भी नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तकज़िबु गदा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा। आप अपनी प्लानिंग कल की कर लें, लेकिन नहीं मालूम कि हम उस प्लानिंग में पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। तो कल जो कुछ भी होना है, दीन का मामला हो या दुनिया का, दोनों अल्लाह ही जानता है कि हमारे बारे में क्या होगा। इसी तरह वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, 5वीं चीज क्या है? कोई शख्स नहीं जानता कि वो जमीन में किस हिस्से पर मरेगा। यानी हम अपने तौर पर तो कहते हैं अल्लाह मुझे घर में मौत देना, या फिर सजदे की मौत देना, हम मांगते हैं अपने तौर पर, तो अल्लाह ताला जानता है कि कौन सी जगह पर मुझे मौत आनी है। अल्लाह के सिवा कोई भी इन बातों को नहीं जानता।